बच्चों, कल मैंने आपको पार्ट सेकंड का कुछ भाग समझाया था। आज मैं आपको आगे समझा रही हूँ द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। ड्यूरिंग द इंटरनल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. As the method of farming changed and the agriculture sector began to purpose of production much more food than before. Many people could now take up other activities and this gave rise to the service sector. Over the long time and especially because new method of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. Secondary sector is gradually become the most important in the total productions and employment in the past 100 years. However, there has been further shift from secondary to third sector in development countries. क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। आज हम देखेंगे विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान प्राथमिक क्षेत्र व आर्थिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जैसे जैसे खेती के तरीके बदले और कृषि क्षेत्र समृद्ध होने लगा, इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक भोजन का उत्पादन किया। बहुत से लोग अब अन्य गतिविधियों कर सकते हैं और उसने सेवा क्षेत्र को जन्म दिया। लंबे समय से भी विशेष रूप से क्योंकि विनिर्माण के नए तरीक़ों को पेश किया गया। कारखाने आए, विस्तार करना शुरू किया। जो लोग पहले खेती में काम करते थे वे अब बड़ी संख्या में कारखानों में काम करने लगे। पिछले 100 वर्षों में कुल उत्पादन और रोजगार के माध्यम से क्षेत्र धीरे धीरे महत्वपूर्ण, हालांकि विकसित देशों के द्वितीयक से फर्क है। पर द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम, the primary sector of third sector of economy are considered that as the best of calculate the national income and gross domestic product a country. At first, monetary value of the productions obtained from all three sectors is calculated. Then the money values obtained separately from all of three sectors are ahead. Thus, the data of gross domestic income is obtained when the net income foreign is added to the gross domestic product. Then the national income is found out. For example, suppose in a country the income from primary sector is 100 crore and 75 crore from secondary and 150 crore from third sector, then we know that will economics development, but gross domestic income will be 325 crore. By the expense income obtained from primary, secondary and third sector of increase, and so their comparative contributions also change. It has been seen that owning of to economics development in the country, the contributions of primary sector gradually decrease in the gross national income and the contributions of secondary and territory और सर्विस सेक्टर इंक्रीज। बच्चों, एक देश की राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए इस देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को आधार पर माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन तीनों क्षेत्रों को प्राप्त उत्पादन के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। तदुपरांत इस अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार देश का सकल घरेलू उत्पादन या राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि एक देश की प्राथमिक क्षेत्र 100 करोड़ रुपये है, द्वितीय क्षेत्र 75 करोड़ रुपये और तृतीय क्षेत्र में 150 करोड़ रुपया होती है। अतः कुल राष्ट्रीय 325 करोड़ रुपये होगी। अनुभव ये बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ जहाँ प्राथमिक व द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र में से प्राप्त आय में वृद्धि होती है, वहीं इसकी तुलना योगदान में भी परिवर्तित होता है। यह देखा गया कि जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक विकास होगी वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है तथा तृतीयक व सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है। नाउ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग शेयर
of the third sector or service sector. By the study of Indian economy, it is clear that though the productions of all the sector have increased during last 60 years, the share of territory sector has been the highest one. Now the territory sector has come up as the largest producer and the creator in income in country. बच्चों, तृतीयक या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पिछले 60 वर्षों से यद्यपि सभी क्षेत्रों का उत्पादन वृद्धि हुई है, तथापि तृतीय क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक रही है। अब तृतीय क्षेत्र देश में सबसे बड़ी उत्पादक एवं आय सर्जक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका कारण निम्नलिखित है। फर्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस 5-year plans were implanted in India. As the result, the public sector has expanded rapidly in India. The service like hospital, educational institution, post and telegraph, transport, bank, insurance companies, local institutions, defense service, judiciary, etc. have expanded in the country. As a result, after independence, their share in the economy has increased. बच्चों, इसका पहला कारण है स्वतंत्रता के बाद देश में पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वित किया गया। इसमें देश की सार्वजनिक सूत्र को तेजी से विस्तार हुआ। देश में अनेक सेवाएं जैसे चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार घर, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, स्थानीय संस्थाएं, सुरक्षा सेवाएं, न्याय व्यवस्था आदि का विस्तार हुआ। फलतः स्वतंत्रता के बाद इन सेवा का विस्तार तेजी से हुआ और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी भी तेजी से हुई। सेकेंड पॉइंट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज़ एक्सपेंडेड रैपिडली ड्यूरिंग पास्ट ईयर. The green revolutions along with the industrial revolutions have been successful in our country. It has increased the demand for the facilities like transport, trade, storage and banking, which has resulted in the rapid expansions of the facilities. बच्चों, दूसरा पॉइंट है देश में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों का पिछले वर्षों में तेज़ी से विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ देश में क्रांति भी सफल रही। इसमें परिवहन, व्यापार, भंडारण, बैंकिंग जैसे सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप इन सेवाओं का देश में तेज़ी से विस्तार हुआ। थर्ड, जनरली इट इज़ सीन दैट विद द इंक्रीज इन द इनकम the consumptions of the various service by the people has also increased. The people are now spending more on private hospital, expensive school purchase of the new goods according to the changing scenery as to vehicles due to the increase in income. The demand for service has increased in village along with cities. The share of service sector in the country has increased ट्रेमेंडसली। बच्चों, थर्ड, प्राय ये देखा गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार की सेवाओं का उपयोग भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होते ही व्यक्ति निजी अस्पताल, महंगे स्कूल, बदलते हुए परिवेश के अनुसार नई नई वस्तुओं को खरीदते हैं, वाहनों का उपयोग आदि पर अधिक खर्च करने लगता है। शहरों के साथ साथ गांव में भी सेवाओं की मांग वृद्धि हुई है। फलतः देश में सेवाओं क्षेत्र की भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई है। द फोर्थ वन इज हेल्पफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ मार्केट. थर्ड सेक्टर इज हेल्पफुल इन द एक्सपेंसेस ऑफ मार्केट ऑफ कम्युनिटीज प्रोटेक्टेड बाय द आर्मीज. Secondary sector, have you ever, how do you get the apples of Kashmir? How do we know the price of camera to be from the England? This is a possible only success because the third sector by the goods and passengers are carried one place to another. बच्चों, चौथा, कुछ वर्षों से सूचना व संचार पे प्रायोगिक के अतिरिक्त अनेक नई सेवाएं उत्पन्न की गई है जिसमें आवश्यक हो गई है कि इसमें देश के उपभोग के साथ साथ उन सेवाओं का उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई है।
ट्यूबलाइटें, टेलीविज़न्स, केबल कनेक्शंस, मोबाइल फ़ोन, मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर आदि की भी हुई। विश्वकरण के परिणामस्वरूप भारतीयों को पश्चिमी देशों का बहुत प्रभाव पड़ा और उसकी सोच में परिवर्तन आया। पहले सोच थी कि धन को बचा कर रख कर गड्ढा करके रखा जाए, किंतु आज भौतिकवाद पनप गया है और इस हर व्यक्ति की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। सिनेमा घर, खरीदारी, घर की सजावट, स्कूटर, कार आदि वस्तुओं की आवश्यकता सामग्री में की जाने लगी। आजकल छुट्टियों बिताने के लिए भी घूमने जाना आवश्यक माना गया है। अतः बैंक, बीमा, पर्यटन, परिवहन, होटल आदि सभी प्रकार की सेवाओं की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र के योगदान में तेजी से वृद्धि हुई है। 5वां, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज। बच्चों, बैंक और अदर फाइनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस the rate credit and the supply capital to the all kinds of industries, whether the need of finance may for short term, medium terms or long terms, carrying of good from industries to market and their advertisement, all the arrangement are done by the third sector. किसी भी वस्तुओं का उत्पादन या कुछ भी करना हो तो उसके लिए कहीं पे भी एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी हो गया है और ये सब थर्ड सेक्टर में आता है। नाउ, सेवा क्षेत्र का महत्व, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द थर्ड सेक्टर इन प्रोडक्शंस। In the year 2003, the third sector has emerged as the largest production sector in India, rapiding. In the primary sector, there are several reasons for this. In any country, several services such as hospital, education, institute, post office, service, etc. The development of agriculture and industries lead to the development of services such as transport, trade, storage, etc. As income level rise, the certain sections of people start demanding many more services like eating, cut, tourism, shopping, private hospital, private school, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व का उत्पादन। वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत प्राथमिक क्षेत्र की जगह ले रहा है। इसके अनेक कारण हैं। किसी भी देश की कई सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं और पोस्ट ऑफिस सेवाएं आदि की बुनियादी सेवाओं के रूप में माना गया है और इसकी जिम्मेदारी सकारात्मक सरकार के पर है। कृषि और उद्योग के विकास की सेवाओं का विकास होता है, जिसे परिवहन, व्यापार या भंडार आदि भी कहते हैं। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता गया, कुछ वर्ग में लोग कई और सेवाओं की मांग करते चले जाते हैं, जैसे बाहर खाना, पर्यटन, खरीदी, निजी अस्पताल, निजी स्कूटर, पेशा और प्रशिक्षण आदि। इस प्रकार सभी चीज़ों का महत्व बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि meaning of infrastructures. Infrastructure is a foundation for an economy. According to its name, provide a basic for development of primary and secondary sector of productions. The progress of any country depend upon the progress of agriculture and industry. But agriculture itself required energy, finance, transport, etc. For production, similarly, machinery, management, energy bank, insurance, transport, etc. are required for production in the industries. All these facilities and services collectively are called the infrastructures. In other words, infrastructures means all those basic facilities, activities and service which help in the executions and development of other sector of productions and are helpful in our daily life. बच्चों, सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है? आपके घटक के रूप में भी देखेंगे। उत्पादन तीनों क्षेत्र राष्ट्रीय आय के सर्जन में योगदान करते हैं। पहला, सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत कम था, किंतु आय और रोजगार दोनों ही दृष्टिकोण से आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ ही सेवा क्षेत्र का महत्व भी बढ़ गया है। रोजगार और आय के घटक के रूप में इस क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित सरलता से समझा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स infrastructure.
Infrastructures which is mainly related to energy, transport and communications is called the economic infrastructures. Railway, roads, ports, airports, dams, power stations, etc. are kept under the economic infrastructure. They have an important place in the economic development of country. Therefore, they are also called the basic economics facilities. पहला है रोजगार में वृद्धि। सेवा क्षेत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे में 15.77 लाख कर्मचारी नियोजित हैं। ये संख्या देश के किसी भी अन्य उपक्रम की तुलना में सर्वाधिक रोजगार के अवसर जुटाने में परिवहन, थोक और फुटपाथ पे व्यापार, बैंक, शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, होटल व्यवसाय योगदान बहुत अधिक मात्रा में देता है। इस प्रकार हम सेकंड देखेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, increase in productions. Service sector is helpful in productions more quantity of good and increase quality in less cost of less time. This sector help in the two ways. One, increase the quality of product by marketing efficient, trained and healthy laborers available. And secondary, it is increase the quantity of productions and income by increasing skill and efficiency. The third one is helpful of expenses of market. Primary sector is helpful in the expenses of market of the commodities productions by the primary and secondary sector. Have you ever thought how do you get the apples? बाजार का विस्तार करने में सहायक। सेवा क्षेत्र में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के उत्पादों को बाजार में विस्तार करने में सहायक होता है। कभी आपने विचार किया कि कश्मीर के सेब आपके कैसे प्राप्त होते हैं, अथवा हम इंग्लैंड के कैमरा खरीदने के लिए भाव कैसे पता करते हैं? ये सेवा क्षेत्र का कारण ही संभव है। परिवहन में सुविधा से माल और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। द फोर्थ वन इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस credit and supply capital to all kinds of industries, whether the need of finance may be for a short term or medium term or long term. Carrying of goods from industries to market and their advertisement, all the arrangement are done by third sector. उद्योगों हेतु वित्त व्यवस्था। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं साख का सर्जन करती है और सभी प्रकार के उद्योगों के लिए पूंजी की पूर्ति करती है। फिर चाहे वित्त की अल्पकालिक आवश्यकता हो, मध्यकालिक या दीर्घकालिक। उद्योगों की स्थापना को लेकर बाजार में वस्तुएं पहुंचने और विज्ञापन करने हेतु सभी व्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र के द्वारा की जाती है। संक्षिप्त में सेवा क्षेत्र पूंजी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर औद्योगिक विकास में सहायक होता है। पांचवा पॉइंट है सेफली ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स development and agriculture. Saving the farmer from the natural climates is also done throughout the service sector. The uncertainty and risk of agriculture's crop is educated by the Varsha Bima Yojana and against the insufficiency of no rain, Fasal Bima Yojana. And the third one is कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. Along with this, third sector is helpful in the increasing the productions by providing capital of farmers. कृषि उपज और सुरक्षा, कृषि का विकास. निर्धन कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और कार्य की सेवा क्षेत्र द्वारा किया जाता है. वर्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि के द्वारा कृषि उपज की अनिश्चितता एवं जोखिम को दूर किया जाता है. साथ ही साथ सेवा क्षेत्र के कृषकों को उन्नत खाद, बीज आदि के क्रय हेतु पूंजी प्रदान कर उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होता है. इस प्रकार सेवा क्षेत्र कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधार लेता है. छठा पॉइंट है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन एवरी कंट्री सम एरियाज गेट डेवलप्ड comparative while some area are left behind as backward ones.
The backward areas of develop throughout the facilities of transport, communications and balance. छठा है संतुलित आर्थिक विकास। प्रत्येक देश में कुछ क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से विकसित हो जाते हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। परिवहन, संचार व वित्तीय सुविधाओं के विस्तार से पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं है। सड़क व रेल मार्गों के निर्माण से पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानों का भी विकास संभव होता है। इससे आर्थिक प्रयास के लाभ सभी क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त होने लगते हैं। 7 is security of the country. The third sector has an important place in the security of country. The means of transport and communication are required to transport that army up to border and to make proper arrangement for them. सातवां, देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा में भी सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिकों को सीमाओं तक पहुंचाने और उनकी समुचित व्यवस्था करने के लिए यातायात एवं संचार साधनों की आवश्यकता होती है। सीमाओं पर पहुंचने, सैनिकों के रहने खाने की व्यवस्था करने, महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने आदि अनेक कार्यों की सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। 8 is the contributions of national income. The importance of third sector is gradually increasing day by day with the economic development. The activities of service sector of increasing rapidly in all sectors, whether it is urban or rural. That is the reason more than half of the national income of obtained from third sector. 8 है राष्ट्रीय आय में योगदान। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का महत्व क्रमशः चल रहा है। आज शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, सभी सेवा क्षेत्र गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेवा क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। The 9th one is earning, obtaining of foreign exchange. A large amount of foreign exchange is earned in the last few years throughout third sector. We obtain foreign exchange from tourism and financial service along with the shipping and air service. In the recent year, there has been significant development in the sector of software called service center and education and health, and now foreign currency is obtained throughout this service also. 9वां पॉइंट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। पिछले कुछ वर्षों से सेवा का निर्यात से भी बड़ी मात्रा में विदेशों से मुद्रा प्राप्त हो रही है। जहाजरानी, हवाई जहाज सेवाएं, साथ साथ पर्यटन और वित्तीय सेवाओं से भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती। हाल ही में वर्षों से कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास हुआ है और अब इन सेवाओं में भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। आगे आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना। बच्चों, आज मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया, आगे का पार्ट मैं कल कंटिन्यूशन में करूँगी।